Good evening, students. Welcome back to the YouTube channel of ATS. So we have come up here with a new chapter, the salient features of the Indian constitutions, right? So before that, we have covered the chapter first, preamble, and then we have done basically we are doing first the constitutional framework, right? So in that series we have done first preamble, and the second one is making of the Indian constitution, and the third one in the series is the salient features of the Indian constitution, right? See, the Indian constitution is unique in its spirit and content, although it has been borrowed from the various sources of the other different countries' constitution, right? And there are the four factors which makes the Indian constitution elephant size. Now, what are those four important factors? We will look. Number one is geographical factors. In geographical factors, it means that India is vast in size. We had a huge diversity, so we have to encompass each and everybody. You cannot exclude someone. So that is why when we see our constitution from Article 1 to Article 448, we feel that every section of the society is included, and we have tried our best to include each and every sections and every region of the society in our Indian constitution. Second one is the political. First is geographical, second is, we'll see, historical. You see, the Government of India Act 1935, which itself is elephant size. Most of that today we see Indian constitution, the 50% of the Indian constitution has been borrowed or has been ransacked from the 1935 Act. Number third is that India has a single constitution for both center and state. We don't have a different constitution for the states, and we don't have the different constitution for the center. We have a single constitution for both center and the state. Got my point? Number fourth point is, when the constitution was adopted and the constitution was drafted at that time, the dominance on the constitution was of legal numeraries. If we see, Pandit Jawaharlal Nehru was there, Bhimrao Ambedkar was there, Sardar Patel was there were many legal luminaries was there. So you can see the dominant effect of these legal luminaries on the Indian constitution. So we'll start with the salient features of the Indian constitutions, right? So Indian constitution, as we see, one of the most utmost admired constitutions in the world, and enacted after ransacking all known constitutions of the world at that time. And the constitution that we enact has stood test of the times. Means the constitution which we admire today has been ransacked from the various parts of the different countries, right? We will see in the further slides that which are the different parts we have taken in our constitution and from which different countries. Got my point? So number one is the lengthiest written constitution. The number one salient features of the Indian constitution is the lengthiest written constitution. Now today, why we call that Indian constitution is the bulkiest constitution, as we have seen that in today's, at the time when constitution was adopted or has been made, at the time there was only 8 schedules, and roughly I think there was 395 articles were there at that time, right? But today our constitution is divided into 25 parts in 448 articles and 12 schedules, right? And we have 106 amendment. And guys, ये जो amendment act है, ये आपको याद रखने पड़ेंगे. In examination, the examiner can ask you directly that which of this following, जैसे I remember in 2020 or 19, they've directly asked about the 99th Constitutional Amendment Act, which was NGAC, National Appointment of Judicial Commission. So they can ask you directly. So you should know the recent, constitutional amendments. Just like if we start from 100, suppose you should know what is 100, what is 101, 100 is 102, then 103, 104, 5, and 106. As we start from 10, now what is 100th constitutional amendment? We have transferred certain territories to Bangladesh, and we have acquired some territories from the Bangladesh. So that was the 100th Constitutional Amendment Act, right? Transfer of territories, in which you need to amend, because without amending you cannot
गिव द पार्ट आई मीन ट्रांसफर द पीस ऑफ लैंड, ठीक है, वो मैं अमेंडमेंट वाले चैप्टर में आपको बताऊंगा अभी। फिर 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 101 में जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया, 102 में हमने नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस बनाया, फिर 103 में हमने 10% रिजर्वेशन दिया ईडब्ल्यूएस को, फिर 104 में हमने एससी एसटी के रिजर्वेशन को बढ़ा दिया फिर से 10 इयर्स के लिए। 105 में हमने क्या किया, 105 में हमने किया स्टेट गवर्नमेंट्स को फिर से पावर दे दी कि वो लोग आइडेंटिफाई कर सकें कि कौन सी कास्ट जो है ओबीसी के अंदर जो है, या कौन सा सेक्शन ओबीसी के अंदर जो एजुकेशनली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट के पास जो पावर थी फिर से उसको रिस्टोर कर दिया। दैट वाज द पार्ट ऑफ 105th अमेंडमेंट एक्ट। 106th में हमने क्या किया रिसेंटली अभी कि भाई 33% वुमेन रिजर्वेशन हम देंगे 15 साल के बाद में, ठीक है, 15 ईयर्स के बाद में, लोकसभा और स्टेट इलेक्शन असेंबलीज के अंदर। गॉट माई पॉइंट। तो इसीलिए हमारे दीज आर द साइलेंट फीचर्स दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द लेंथीएस्ट एंड द बल्किएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड विच कवर्स 25 पार्ट्स, 448 आर्टिकल्स, 12 शेड्यूल्स। आपको शेड्यूल्स भी याद रहने चाहिए, टोटल 12 शेड्यूल्स हैं। एग्जामिनर कैन आस्क यू दैट एंटी डिफेक्शन कौन से में, 10th शेड्यूल में, 11th शेड्यूल में क्या है, पंचायती राज, 12th शेड्यूल में क्या है, 12th शेड्यूल में जो अर्बन बॉडीज जैसे आपकी म्यूनसिपैलिटीज, ठीक है, ये जो नगर पालिका, इससे रिलेटेड चीज़ें हैं। फिर आपको 9th शेड्यूल में विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, जुडिशियल रिव्यू वाला आपको याद रखना है। 8th शेड्यूल के अंदर ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं आपकी। 7th शेड्यूल के अंदर आपका जो डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ द वेरियस पावर्स बिटवीन यू नो द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड कंकरेंट लिस्ट है। फिर आपका जो है 6th शेड्यूल, 5th शेड्यूल जो स्पेशल प्रोविजंस हैं, पावर फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन फॉर द शेड्यूल ट्राइबल शेड्यूल एरियाज है। 4th शेड्यूल है आपका एलोकेशंस हैं फॉर द सीट्स ऑफ राज्यसभा। 1st शेड्यूल है नेम एंड यूनियन टेरिटरी। 2nd शेड्यूल में हम बात करते हैं ये इसका कि कैसे हम पर्क्स और एम्यूलमेंट्स और जो अलाउंस देंगे प्रेसिडेंट को, गवर्नर को, सुप्रीम कोर्ट जजेस को, हाई कोर्ट्स को। 3rd शेड्यूल में हम देखते हैं ओथ एंड अफर्मेशंस है। तो ये जो टोटल 12 शेड्यूल्स हैं ये आपको लाइन बाय लाइन मगअप होने चाहिए, याद रहने चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद में हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं व्हाट आर द सेलेंट फीचर्स। तो पहला मैंने आपको बताया लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। आपको देखो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई इट इज वेरी डिफरेंट, आई एम टेलिंग यू फ्रॉम अदर। देखो आपको सबसे पहले ये बताना है कि दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन बोरोड फ्रॉम द वेरियस सोर्सेज ऑफ द डिफरेंट कंट्रीज। फिर उसके बाद में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 4 फैक्टर्स कहाँ से डेराइव करते हैं, जोग्राफिकल, हिस्टोरिकल। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया सिंगल सिटीजनशिप वाला कॉन्सेप्ट है, जो सिंगल लॉज सेंटर और स्टेट में। फिर जो लीगल लुमिनरीज थे उनका डोमिनेंस। फिर उसके बाद ये कह सकते हो आप कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है दैट नॉट ओनली सेट्स द फंडामेंटल गवर्नेंस or that only not tells you about the fundamental governance of a country, but Indian constitution tells you about the detailed administrative provisions of the other different aspects of the governance. क्या मतलब हुआ साहब इसका मतलब ये हुआ कि और कंट्रीज के अंदर जो कोई कुछ, जैसे मान लीजिए हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है इलेक्शन कमीशन, यूपीएससी, फाइनेंस कमीशन, तो वो उनके कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। उसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म है वो अलग से कोई एक्ट बना के पास करके फिर उसमें डिटेल में दिया होता है कि कैसे ये ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन करेंगी। लेकिन हमारे यहाँ तो संविधान में ही दिया हुआ है। जैसे यूपीएससी वो आर्टिकल 14 में आता है, इलेक्शन कमीशन जो है आर्टिकल 15 कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 15 में आता है, 14th में ये आपका यूपीएससी आ गया, ठीक है। तो ऐसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही डिटेल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म है इन सारी चीजों को लेके कि किस तरह से किसका कितना पावर है, ठीक है, कि किस किस का कैसे कैसे मैकेनिज्म है। ये ऑल थिंग्स आर इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ, ठीक है। तो दिस इज नोन एज द लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। यू गॉट माय पॉइंट, ठीक है। इट इनकॉर्पोरेट्स द एक्सपीरियंस ऑफ ऑल लीडिंग कॉन्स्टिट्यूशंस, ठीक है। इट प्रिस्क्राइब द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द यूनियन एज वेल एज द स्टेट्स। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है दैट हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड फॉर बोथ यूनियन एंड स्टेट। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन इज देयर ओनली, देयर इज नो डबल कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। आफ्टर दैट वी आर अदर डिफरेंट थिंग्स। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात, सोवरेनिटी रिजाइड्स इन द पीपल। हमने देखा था प्रीएम्बल के टाइम पे दैट इन द प्रीएम्बल
वी द पीपल, जो प्रियम्बल है वो स्टार्ट होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, मीन्स द रियल अथॉरिटी, द रियल सुप्रीमेसी, द रियल पावर इज इन लाइज विद द वी द पीपल ऑफ इंडिया. ठीक है, वी द पीपल आर द कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. गॉट माई पॉइंट? ठीक है, द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स that the constitution of India was adopted and enacted by the people of India, and the people are the custodian of the Republic of India. So the ultimate source and the authority in India is we the people of India. Got my point? So this is how we can say that the sovereignty resides in the people of India. Here a unique blend of rigidity and flexibility, these are the silent features of the Indian constitution. Number 1, sovereignty resides in the people. Number 2, lengthiest written constitution. Number 3, you can say unique blend of rigidity and flexibility. Unique blend of rigidity and flexibility का मतलब ये होता है कि rigidity का मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चीज़ों को आप चेंज नहीं कर सकते हो, यू नीड ए स्पेशल लॉज. फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट. ठीक है, मतलब आप लिविंग डॉक्यूमेंट इसलिए कहते हैं उसको क्योंकि भारत का जो संविधान है उसमें आप टाइम के अकॉर्डिंग उसमें चेंजेस कर सकते हैं. जैसे हमने अभी आपको बताया कि 106 अमेंडमेंट हुए हैं, तो 106 अमेंडमेट हुए हैं, इसका मतलब चेंजेस की जा सकती है. रिजिडिटी का मतलब ये होता है कि कुछ आर्टिकल्स को आप चेंज नहीं कर सकते हैं टू सिक्योर द राइट्स ऑफ द पीपल. गॉट माई पॉइंट? जैसे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है वो, उसको पार्लियामेंट जो है भले ही कितनी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ कोई सरकार आई उसको चेंज नहीं कर सकती. बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है वो आपको मैं डिटेल्ड में पढ़ाऊंगा अगले चैप्टर के अंदर. वो किसी कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं है. बेसिक स्ट्रक्चर डिटरमाइन हमने किया वेरियस लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट जजमेंट का, स्पेशली दैट कम्स इनटू द पिक्चर आफ्टर द केशवानंद हिस्टोरिक केस ऑफ द केशवानंदी भारती इन 1973, वेयर court has opined that the preamble is the basic structure of the Indian constitution. So certain provision of the Indian constitutions can be difficult to change, that is why we call that is rigid, and others can be easily amended. So in amendment also we have different provisions. Some can be amended easily, that is we can amend by simple majority, some need some absolute majority, special majority, and some laws need to the special majority with the ratification of the half of the states, right? So we in India we have a setup of 3 types of majority: simple, special majority, or a majority with the ratifications of the half of the states. This is how we can say that Indian constitution is a unique blend of rigidity and flexibility. That is why we call this is a living document, means you can change also the constitution as per the need of the time, right? Then drawn from the various sources. Now most of the Indian constitution, guys, has been taken or ransacked from the 1935 Government of India Act 1935. You can say that 50% of the Indian constitution has been taken from the Government of India Act 1935 itself. The Indian constitution is compilation of the various sources and influence reflecting the diverse experience and aspirations of the Indian people. The Constitution of India is drafted by borrowing provision from the various sources like Constitution of various countries, the Government of India Act 1935. ठीक है, अब कौन कौन से कंट्रीज से हमने क्या क्या लिया है विल लुक, और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, तो यू हैव टू मग अप दिस, यू हैव टू थोरोली मग अप दिस. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? नाउ ऑस्ट्रेलिया, from Australia we have taken the concurrent list. Concurrently, see, in India we have a division of powers into the 3 setups, right? Number 1, the power resides with the central. Some subjects have the power resides with the central government. In some subjects the power resides with the state government. In some that is concurrent. ठीक है, तो concurrent देखो, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एग्जाम्पल देके समझाता हूं. जैसे रेलवेज है, डिफेंस है, एयर स्पेस है, ये जितने भी इन चीज़ों से रिलेटेड जितने भी लॉ है वो सिर्फ केंद्र सरकार, दैट सेंट्रल गवर्नमेंट कैन मेक. गॉट माय पॉइंट? पुलिस हो गया, ठीक है, ये सब चीज़ों से रिलेटेड जितने भी लॉज होंगे वो स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है. हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, ये आते हैं रेसिड्यूरी के अंदर, ये आते हैं कंकरेंट लिस्ट के अंदर. मतलब स्टेट और सेंटर दोनों मिलके इन लॉज को चेंज कर सकती हैं. एक होते हैं रेसिड्यूरी, जो ना कि स्टेट में है, ना सेंट्रल में है, और ना ही कंकरेंट लिस्ट में. उनके वो जो पावर होते हैं वो पावर्स होते हैं पार्लियामेंट के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास. ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट कैन मेक लॉज ऑन दोस सब्जेक्ट. तो नंबर 1 इन ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या क्या लिया है? कंकरेंट लिस्ट. फिर फ्रीडम ऑफ द ट्रेड, कॉमर्स, इंटरकोर्स,
ठीक है, फ्रीडम ऑफ ट्रेड मीन्स a people of Jammu Kashmir can trade with the people of Himachal, a Himachal people he can trade come up in Delhi, a Delhi people can trade with the people of Madhya Pradesh, a Madhya Pradesh people can trade. So mean in India the trade is a uniform subject, means everybody can trade from east to west and from north to south. Got my point? So this we have taken, the significant provision we have taken from the Constitution of Australia. Then we have taken joint sitting of the two houses of parliament, and sometimes we need a special sittings where both the Lok Sabha and Rajya Sabha jointly sit to pass some law. So this provision we have taken from the Constitution of Australia. Then we have Canada. What we have taken from the Canada, that is federation with the strong center, right? The central government is more stronger than the state governments. ठीक है, vesting the residuary powers in the center. I have told you na that the residuary subjects, they are stored in these powers are stored in the central government, right? Then the appointment of the state governors by the center and advocacy jurisdiction of the Supreme Court, means governor को जो appoint करती है, that is appointed by the central government, right? So that has been taken from the Canadian. This model has been adopted from the Canadian Constitution. Advisory Supreme Court means sometimes the president can take advice from the Supreme Court on certain matters, but that advice is not binded on the president. President may adopt that advice, president can drop that advice. He can take that advice and he can drop that advice. But this concept of adversary jurisdiction of the Supreme Court has been taken from the Canadian model. Then we'll come to the Ireland. See, the concept of directive principle of this state policy, which comes in the fourth part of the Constitution, covering Article 36 to 51, we have taken this one from the Irish Constitution. Then second, we have the nomination of the members of the Rajya Sabha. You know, the 12 members are nominated by the president to the Rajya Sabha. So this part of the Constitution we have taken from the Irish Constitution. Then the method of election of the president, how the president is elected in India, by the people or indirectly by the people. That is indirectly by the people, because in the method of election of the president, we use proportional representation method. You got my point? I will tell you this in the president chapter in detail, but for as of now, this is only important that the method of the president has been taken by the Irish Constitution, and who votes in the president, that the elected members of the Lok Sabha, elected member of the Rajya Sabha, elected member of the legislative assemblies, and including the elected MLAs and elected MPs of the Delhi and Pondicherry Union Territories as well. Got my point? So these are the people who vote in the election of the president. So these are the important points you have to remember. Now in the next, USSR's fundamental duties, part 4th A of the Indian Constitution. 11 fundamental duties we have in our Constitution, covering Article 51A. ठीक है, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज. ये कहां से हम लोगों ने लिए? ये हमने लिए रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से. आइडिया ऑफ जस्टिस प्रियम्बल में था ना, आइडिया ऑफ जस्टिस. कौन कौन से जस्टिस? सोसाइटियल जस्टिस, इकोनॉमिकल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस. पॉलिटिकल जस्टिस मीन्स दैट एवरीबडी कैन कंटेस्ट इलेक्शंस. इकोनॉमिक जस्टिस मीन्स everybody has a right to trade, everybody has a right to job, whatever they wanted to work. You have a freedom to work whatever work you wanted to do. So social justice means everybody has a same dignity, same respect in the society. You got my point? And then the United Kingdom, that is called UK or England. So we have taken the parliamentary form of the government. This is one of the most significant. We have taken from the UK. Then the rule of law, one of the most important. This covers into the basic structure of the Indian Constitution as well. Then the legislative procedure. What are the legislative procedure? That if any law has to be passed, first it has to be passed from the Lok Sabha, then it has to go to the Rajya Sabha chamber, and then that will be sent to the president for the assent. And when the president gives assent to that bill, that has become the law or act. Got my point? We have a single citizenship, cabinet system, prerogative writs, parliamentary privileges, bicameralism, Lok Sabha, Rajya Sabha, state assemblies. This is called bicameralism. ठीक है, ड्यूअलिज्म है ना. फिर उसके बाद ये हम देखते हैं सिंगल सिटीजनशिप है. ये इसको आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे कि भाई यूएसए में जैसे पहले स्टेट का भी सिटीजन होता है, जैसे आप यूएस में बहुत सारे स्टेट्स होते हैं, आप वहां के भी सिटीजन माने जाओगे, और फिर आप जो है पर्टिकुलरली उस कंट्री के भी सिटीजन माने जाओगे. लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है. इंडिया में यू आर ए सिंगल सिटीजन ऑफ ए इंडियन स्टेट ओनली. जैसे आधार कार्ड है, तो ऐसा थोड़ी है बिहार के लिए आधार कार्ड अलग बनेगा, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट
दिल्ली में आओगे तो उसका आधार कार्ड बनेगा, तो आधार कार्ड इज अ यूनिफॉर्म। गॉट माई पॉइंट? तो ऐसे ही इंडिया के जो लोगों को पासपोर्ट मिलता है, दैट इज अ यूनिफॉर्म पासपोर्ट। गॉट माई पॉइंट? इन इंडिया वी हैव अ सिंगल सिटीजनशिप। फिर उसके बाद यूएसए, द फंडामेंटल राइट्स, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, जुडिशियल रिव्यू, यूएसए से हमने फंडामेंटल राइट्स लिया है, ठीक है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी लिया है, जुडिशियल रिव्यू लिया है, इंपीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट लिया है, रिमूवल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जजेस एंड द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। दीज इंपॉर्टेंट थिंग्स, फंडामेंटल राइट्स, पार्ट 3 of the Indian Constitution, covering Article 12 to 35, we have taken from the US Constitution. Independence of the judiciary, judicial review, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट अपने किसी भी फैसले को रिव्यू कर सकते हैं, ठीक है। इंपीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को कैसे इंपीच किया जाता है, दीज ऑल फैक्टर्स वी हैव टेकन फ्रॉम द यूएसए, ठीक है। रिमूवल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जजेस वी हैव टेकन फ्रॉम द यूएसए। पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट वी हैव टेकन फ्रॉम यूएसए। जर्मनी से हमने फिर क्या लिया है, जर्मनी से हमने लिया है सस्पेंशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग द इमरजेंसी, वी हैव टेकन फ्रॉम द जर्मनी। फिर उसके बाद में साउथ अफ्रीका, द प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 368, यही तो है जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को क्या बनाता है, फ्लेक्सिबल। अभी हम बात कर रहे थे ना भाई, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जो लिविंग डॉक्यूमेंट बनाता है, आप कैसे कहोगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डॉक्यूमेंट है? दिस आर्टिकल 368 में कि कॉन्स्टिट्यूशन में हम अमेंड कर सकते हैं। ये अमेंडमेंट वाला प्रोसीजर हमने कहां से लिया है, साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से। फिर इलेक्शन of the members of the Rajya Sabha by the proportional representation system, this has been taken from South African. Then France, idea of liberty, equality, fraternity, जो preamble में idea है liberty, equality and fraternity का, we have taken from the France. Got my point? फिर बात हम करेंगे what are the silent features of the Indian Constitution. Preamble, I've already told you, पहला lengthiest written constitution, फिर आप फंडामेंटल राइट्स कह सकते हैं, डीपीएसपी कह सकते हैं, प्रीएम्बल कह सकते हैं, ठीक है, सिंगल सिटीजनशिप, दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ द साइलेंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ वी मूव टू द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दिस इज ऑल्सो नोन एज द साइलेंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ preamble, already I've told you that preamble sets the guiding principle or the founding principle of our constitution, ठीक है। preamble में बात आती है sovereignty की, then sovereignty means independence in the national and the international, means जब आपको कोई पॉलिसी को अडॉप्ट करना है, जब आपको कोई पॉलिसी को अडॉप्ट करना है, आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। मतलब इंडियन गवर्नमेंट अपनी स्टेट की पॉलिसी या इंटरनेशनल पॉलिसी किसी से देख के नहीं बनाएगा। वी आर सोवरीन टू फॉर्मुलेट व्हाट एवर वी वांटेड टू मेक, ठीक है। तो प्रियम्बल का जो ये आइडिया है, ये आइडिया कहां से आया? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन मूव्ड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू 13 दिसंबर 1946। तो दिस प्रियम्बल ऑल्सो मेक्स दैट दिस इज अ सिग्निफिकेंट फीचर, दिस इज अ सैलेंट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सोवरेनिटी रिसाइड्स इन द पीपल ऑफ इंडिया। क्योंकि मैंने क्या बोला था, प्रियम्बल को ताकत कहां से मिलती है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन को ताकत कहां से मिलती है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। उसके बाद में हम देखेंगे कि सोशलिस्ट स्टेट हैज द सिग्निफिकेंट ओनरशिप, सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी, रिपब्लिक। सेकुलरिज्म, इंडिया का स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है। नाइदर वी आर एंटी रिलीजन, नाइदर वी सपोर्ट एनी रिलीजन। फॉर अस वी ट्रीट एवरीबडी इक्वली। सेकुलरिज्म, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, राइट, आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 27, 28, 29। दिस डिनोट्स दैट इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री, धर्मनिरपेक्ष हम लोग हैं। ना तो हमारे इंडिया जैसे सऊदी अरब, पाकिस्तान, इनका एक कंट्री का एक पर्टिकुलर स्टेट रिलीजन है, ऐसे इंडिया का कोई रिलीजन नहीं है। फॉर अस we treat everybody equally. Everybody has their right to manage their religious affairs. Everybody has a freedom to freely practice, propagate their religious things in whichever manner they wanted to do. In India we have a democracy, means that the government gets its authority from the people of India. India is a republic country. Republican country means the head of the state is not a hereditary, that has been directly or indirectly elected by the people of India. Got my point? In India we have the socialism. Socialism means when
द नेचर ऑफ द स्टेट इज इन द वेलफेयर नेचर। जैसे अपन देखते हैं ये जो वेरियस स्कीम्स हैं, मनरेगा, इट हेल्प्स द पुअर पीपल ना, ठीक है। मैटर्निटी लीव्स जो मिलती हैं महिलाओं को, दिस इज अ वेलफेयर नेचर ऑफ द स्टेट, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटीज, सो दीज आर द वेलफेयर सोशलिस्टिक नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट। दिस इज अ सिग्निफिकेंट प्रोविजन, you can say these are the important silent features of the Indian constitutions. Then we have fundamental rights already discussed. 6 फंडामेंटल राइट्स है हमारे पास, राइट टू इक्वालिटी 14 से 18, राइट टू फ्रीडम है 19 से 22, फिर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन है हमारे पास 23-24 में, फिर राइट टू फ्रीडम है आर्टिकल 25-28 में, ठीक है। ये हो गया फंडामेंटल राइट्स, 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। सो दीज मेक्स द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के साइलेंट फीचर्स हैं ये। गॉट माई पॉइंट। फिर उसके बाद हम देखते हैं कल्चरल एजुकेशन राइट्स हैं 29-30 में, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32 विच इज नोन एज द सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें डिफरेंट रिट्स हैं, मैंडेमस, को वारंटो, सेरिटोरी, प्रोहिबिशन। ये जो रिट्स हैं मैं आपको पढ़ाऊंगा जब फंडामेंटल राइट्स पढ़ाऊंगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कितनी इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल राइट्स क्या करते हैं, वो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को प्रमोट करते हैं सोसाइटी के अंदर, ठीक है। और दे ऑपरेट एज ए लिमिट ऑन द स्टेट्स पावर, मतलब वो रोकते हैं स्टेट को, दे आर नेगेटिव फॉर द स्टेट, क्योंकि वो रोकते हैं स्टेट को टू डू सर्टेन थिंग्स अगेंस्ट द सिटीजन्स। गॉट माई पॉइंट। सो दिस इज हाउ वी डील विद द fundamental rights. So we can say that fundamental right is a significant salient features of the Indian Constitution. However, the fundamental rights are not also absolute in the nature, means that is subject to the reasonable restrictions. Means fundamental rights are not absolute, means government can curtail these right when they need. When we see article 352 is imposed, national emergency is imposed, fundamental rights are automatically bifurcated, cutted, एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21। 20 और 21 को छोड़ के जब इमरजेंसी इंपोज होती है तो फंडामेंटल राइट जो होते हैं वो ऑटोमेटिक नल एंड वॉइड हो जाते हैं। एट दैट टाइम यू कैन नॉट अप्रोच द कोर्ट्स एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21। सो दिस मेक्स द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अ यूनिक, व्हाट वी कॉल एज अ यूनिक साइलेंट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फिर उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज हैं भाई, जैसे फंडामेंटल जो राइट्स हैं वो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को प्रमोट करते हैं, ऐसे ही फंडामेंटल ड्यूटीज स्वर्ण सिंह कमेटी 42nd अमेंडमेंट 1976 को इंपोज की गई, जिसमें 11 फंडामेंटल ड्यूटीज। अभी मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया कि फंडामेंटल राइट्स हमने लिए यूएसए से। फंडामेंटल ड्यूटीज आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि फंडामेंटल ड्यूटीज हमने कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया गया है, ठीक है, या कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से रेंसेक किया गया है, ठीक है। ये इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज को क्यों, क्योंकि हम लोग ताकि हमारे जो सिटीजन्स हैं उनकी एक मॉरल सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनको रिकॉग्नाइज करवा सकें, याद दिला सकें कि सिर्फ आप फंडामेंटल राइट्स लेने के लिए खड़े मत रहिए, व्हेन नेशन नीड्स यू। फंडामेंटल ड्यूटीज क्या हो सकती हैं कि आप अपने नेशनल एम्बलम का रिस्पेक्ट करें, अपने नेशनल हीरोज़ को उनका रिस्पेक्ट करें, नेशनल फ्लैग का, नेशनल एंथम का, साइंटिफिक सोसाइटी में टेम्परामेंट डेवलप करें, रिलीजियस हार्मनी बनाए रखें, ठीक है। अपने जो आपका जो नेचर है, वाइल्ड लाइफ है, उसको आप बचा के रखें, प्रोटेक्ट करके रखें, ठीक है। सोसाइटी में ब्रदरहुड फर्टर्निटी बना के रखें। दिस ऑल आर द फंडामेंटल ड्यूटीज, विल डिस्कस इट इन डिटेल इन द फंडामेंटल ड्यूटीज चैप्टर। सो दिस इज हाउ we can say that in India we don't only have that fundamental rights in our constitution, but we have fundamental duties that makes that make realize to the citizens of India that you should be moral and civic towards the nation, right? So the fundamental duties are required citizens to update the certain basic norms of democratic conduct and democratic behaviors, means ताकि वो उनको याद दिला सके कि आपको कुछ डेमोक्रेटिक कंडक्ट और डेमोक्रेटिक बिहेवियर आपका होना चाहिए नेशन के टुवर्ड्स, ठीक है। फिर उसके बाद डीपीएसपी ऑलरेडी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं, ये पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, ये भी साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये प्रोवाइड करते हैं, डीपीएसपी प्रोवाइड करता है वेलफेयर स्टेट ऑफ द नेचर, ठीक है। ये जैसे फंडामेंटल राइट्स नेगेटिव होते हैं स्टेट के लिए क्योंकि वो स्टेट को रोकते हैं टू डू सर्टेन थिंग, ये पॉजिटिव होते हैं हमारे लिए, ये स्टेट को मजबूर करते हैं कि आपको वेलफेयर पॉलिसीज बनानी है, ठीक है, सिटीजन्स ऑफ कंट्रीज के लिए, ठीक है। द प्रिंसिपल लेड
डाउन आर फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ कंट्री। ये जो इसके अंदर जो प्रिंसिपल्स होते हैं दे आर वेरी फंडामेंटल टू डू द गवर्नेंस ऑफ द कंट्रीज। ठीक है, ये डील करते हैं सोशल और इकोनॉमिक राइट्स ऑफ द पीपल। ठीक है, कवरिंग आर्टिकल ये अपन डिस्कस करेंगे इसको डिटेल डीपीएसपी वाले चैप्टर में 36 to 51A तक। ठीक है, आपको इतना याद रखना है, देयर एम इज टू एस्टेब्लिश द वेलफेयर स्टेट ऑफ द इंडिया। फिर उसके बाद वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस कि दिस इज अ सिग्निफिकेंट साइलेंट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सिंगल सिटीजनशिप। ठीक है, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से कैसे हमारा अलग है। फिर उसके बाद पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है हमारे पास। द कोर प्रिंसिपल ऑफ द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। मीन्स हमारे पास जो देश में एग्जीक्यूटिव सिस्टम है वो रिस्पॉन्सिबल है लेजिस्लेचर के लिए, मतलब कैबिनेट मिनिस्टर्स दे आर रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स द पार्लियामेंट। ऐसे ही स्टेट असेंबलीज के अंदर जो स्टेट मिनिस्टर्स होते हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव assemblies, their particular assemblies. Means we have a separations of powers here, right? That makes a unique blend of the parliamentary form of the government. फिर उसके बाद में we see that the features of the parliament of the government means there is the presence of nominal and executive. ठीक है, यहां पे लीडरशिप होती है प्राइम मिनिस्टर की, यहां पे लीडरशिप होती है प्राइम मिनिस्टर की, लीडरशिप होती है चीफ मिनिस्टर की। ठीक है, दिस इज हाउ वी डील विद द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। उसके बाद हम देखते हैं डिसोल्यूशन हो जाता है लोकसभा का, ये रेगुलरली इंटरवल पे चुनाव होते हैं ना, हर 5 साल के बाद चुनाव होते हैं। तो दिस इज हाउ आवर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वर्क्स। ठीक है, फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट, द नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट इज द फेडरल इन द सेंस द पावर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। द कॉन्स्टिट्यूशन एज अ यूनिटरी फीचर्स मेकिंग यूनिक एंड क्वासी फेडरल सेटअप। यूनिटरी फीचर्स जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के यूनिटरी फीचर्स क्या हैं? सिंगल सिटीजनशिप, ऑल इंडिया सर्विसेज, इंटीग्रेटेड जुडिशरी, ये सब मतलब हमारे यूनिटरी फीचर्स हैं। बट हमारा क्वासी जुडिशियल सेटअप है, जैसे भले ही हमारी इंडिपेंडेंट जुडिशियरी है पर वो इंटीग्रेटेड जुडिशियरी है, मतलब कोई भी लॉ सुप्रीम कोर्ट पास करता है वो मान्य लागू होगा हाई कोर्ट पे भी, और जो डिस्ट्रिक्ट लोअर कोर्ट्स होते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स उनके ऊपर भी। तो दिस इज अ इंटीग्रेटेड सिस्टम। ऐसे ही जब कोई लॉ पास होता है सेंटर के द्वारा दैट इज अप्लाइड अक्रॉस द बोर्ड, सारे स्टेट्स के अंदर उसको अप्लाई माना जाएगा, सारे उसको यूनियन टेरिटरीज में अप्लाई माना जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं दैट द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट, द नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट इज अ फेडरल इन द सेंस दैट द पावर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट। मैंने बताया था ना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स होता है किस किस के बीच में, यूनियन और स्टेट के। फिर इसको भी अपन डिवाइड करते हैं 3 सब्जेक्ट्स के अंदर। मैंने आपको बताया था कुछ सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होती हैं, कुछ पावर स्टेट के पास होती हैं सब्जेक्ट्स पे, कुछ सब्जेक्ट्स पे पावर जो होती हैं वो कंकरेंट लिस्ट में होती हैं, और जो सब्जेक्ट्स कहीं डिसाइडेड नहीं होते जिनको रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स बोलते हैं वो पावर्स होती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में। ठीक है, तो दिस इज हाउ विल डील विद दिस फेडरल बिकॉज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिटन एंड सुप्रीम द 2 सेट्स ऑफ गवर्नमेंट, देयर इज अ डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंटर एंड there is an independent judiciary in India, we called independent judiciary. Unitary because मैं आपको बता ही चुका हूं कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, जैसे इलेक्शन कमीशन है विच इज इंटीग्रेटेड। भाई सेंट्रल गवर्नमेंट का इलेक्शन भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराता है, जो स्टेट असेंबलीज का इलेक्शन होता है वो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाता है। ठीक है, उसकी भी डेट्स वगैरह सब रिस्पॉन्सिबल तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही है ना। तो हमारे जैसे कॉम्पिटिटर ऑडिटर जनरल्स होते हैं जो कैग होते हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट या पीएसयूज इनको भी कैग ऑडिट कर सकता है, स्टेट गवर्नमेंट की जो एंटिटीज होती हैं उनको भी कैग ऑडिट कर सकता है। तो हमारा जो देश है वो एक, भले ही कुछ सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर यूनिटरी हो, लेकिन हमारा जो देश है वो एक इंटीग्रेटेड सेटअप के अंदर है। दैट इज व्हाई वी कॉल इट इज नोन एज अ क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर। गॉट माय पॉइंट? जैसे सिंगल सिटीजनशिप है, सिंगल इंटीग्रेटेड इंडिपेंडेंट जुडिशियरी है ना, तो दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ द यूनिटरी बेसिस। फिर स्टेट गवर्नर्स हैं, उनको इलेक्ट कौन करता है, उनको सेलेक्ट कौन करता है या नॉमिनेट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। रिमूव भी प्रेसिडेंट कर सकता है, भेजेंगे स्टेट में, लेकिन सेलेक्ट कौन कर रही है? प्रेसिडेंट कर रहा है। ठीक है, फिर स्टेट डिपेंड ऑन द यूनियन फॉर द ग्रांट इन एड। तो ये सारी चीजें जो हैं ये बनाती हैं, दीज ऑल थिंग्स आर सेइंग दैट द स्टेट, इंडियन स्टेट हैव बोथ फेडरल स्ट्रक्चर एज वेल एज द यूनिटरी स्ट्रक्चर। ठीक है,
एंड दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ साइलेंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। फिर उसके बाद में वी हैव, पहले हमारे पास दो ही टीयर गवर्नमेंट थी, सेंटर स्टेट। फिर उसके बाद 73rd हिस्टोरिक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में हमने थर्ड टीयर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को लागू किया। दिस इज नोन एज पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। 73rd में पंचायती राज, जो कि पार्ट 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आता है, 11th शेड्यूल में आता है, और जो कि पार्ट 9th ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ऐसे ही 9th ए में है ये अर्बन बॉडीज वाला, जो म्युनिसिपैलिटी, नगरपालिका वगैरह ये आता है, ये 12th शेड्यूल में आता है, ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन के 9th ए पार्ट में आता है। फिर उसके बाद में आजकल तो ये नया आ गया, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ठीक है। सो वी हैव द सिस्टम्स ऑफ लोकल एंड सेल्फ गवर्नमेंट्स, ठीक है। और ये जो पंचायती राज सेटअप है ये हमारे डीपीएसपी में भी बोला गया है, ठीक है, बता आर्टिकल 40 के अंदर, विच इज नोन एज द गांधीयन प्रिंसिपल। डीपीएसपी को हमने तीन तरह से जो डीपीएसपी वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे, जो डीपीएसपी में आर्टिकल 36 से 51 तक हैं, उनको अपन ने तीन प्रिंसिपल्स में बांटा है। कुछ आर्टिकल्स गांधीयन प्रिंसिपल्स बोला गया है, कुछ आर्टिकल को सोशलिस्ट प्रिंसिपल बोला गया है, कुछ आर्टिकल्स को लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स बोला गया है। गॉट माई पॉइंट। फिर मैं आपको ये ऑलरेडी बता चुका हूं, 73rd 74th अमेंडमेंट एक्ट, पार्ट 9 थे। फिर उसके बाद इंडिपेंडेंट एंड इंटीग्रेटेड जुडिशरी वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, ठीक है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, आर्टिकल 326 एंड 325। देखो, पहले 21 साल से बड़े थे वो लोग वोट दे पाते थे, लेकिन 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988 के बाद में हर व्यक्ति जो 18 साल से बड़ा है, वेदर इट इज मेल, वेदर इट इज फीमेल, वेदर इट इज ट्रांसजेंडर, एवरीबडी हैज अ राइट टू वोट। नाउ द क्वेश्चन इज हियर, यूपीएससी ने भी पूछा, राइट टू वोट आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि राइट टू वोट फंडामेंटल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, या लीगल राइट है, या इनमें से कोई भी नहीं। ये आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी भी एक सिग्निफिकेंट प्रोविजन है हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। आर्टिकल 325 में हम ये डिस्कस करते हैं कि किसी भी आदमी को आप वंचित नहीं कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट, कलर, सेक्स एंड क्रीड। एवरीबडी हैज राइट टू वोट। एंड आर्टिकल 326 डिफाइंस that the universal adult franchisee is the basis of elections in the all levels of to elect the government, ठीक है। मतलब 18 साल से ऊपर का कोई व्यक्ति है, ये बेसिस रहेगा किसी भी गवर्नमेंट को इलेक्ट करने के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद में, दिस इज ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू दैट every eligible citizen above 18 years, every citizen who above than 18 that is eligible without discrimination prescribing any qualification based on the religion, race, caste, sex, ठीक है, descent, place of birth and residence alone, ठीक है। these are the things। फिर उसके बाद special attention to the scheduled areas and scheduled tribes, this is also the very important silent feature of the Indian constitution, that in schedule 5th and schedule 6th we have placed कि भाई जो पीपल नॉर्थ ईस्ट के हैं, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर बहुत सी डाइवर्सिटी है भैया, बहुत सारे ट्राइबल पीपल हैं, सबकी अलग अलग क्रीड्स हैं, सबकी अलग अलग मान्यताएं हैं, तो उन सब को मद्देनजर रखते हुए उनके लिए अलग से लॉ बनाना पड़ता। तो हमने 5th 6th शेड्यूल का जो है कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन कर दिया, जिसके अंदर हम जो खास करके 6th शेड्यूल में आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में जो लोग रहते हैं उनके लिए प्रोविजन रखा, और जो शेड्यूल अदर एरियाज में रहते हैं शेड्यूल, उनके लिए डिटेल्ड में मैकेनिज्म है, प्रोविजन है कि एडमिनिस्ट्रेशन वहां पे कैसा होगा, ठीक है। तो ये सारे प्रोविजंस हमने रखे हैं। सो द 6th शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन गेव द स्पेशल अटेंशन टू द नीड ऑफ द स्टेट इन द नॉर्थ ईस्ट एंड द सेंट्रल पार्ट्स ऑफ इंडिया। फिर द पीपल रिसाइडिंग इन दीज एरिया हैव अ डिस्टिंक्ट कल्चर दैट नीड्स टू बी प्रोटेक्टेड एंड प्रमोटेड, देयरफॉर द प्रोविजन हैव बीन मेड टू अलाउ देम टू मैनेज देयर लोकल रीजन्स। इन रीजन्स के अंदर जो लोग रहते हैं, इनके कल्चर को भी प्रोटेक्ट भी करना है और प्रमोट भी करना है। देयरफॉर इसीलिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये प्रोविजन डाला, ताकि हम इनके जो कल्चर है इसको हम प्रमोट कर सकें और इसको हम जो है बचा सकें, ठीक है। फिर इमरजेंसी प्रोविजन आर्टिकल
356, 360 ये सारे इमरजेंसी प्रोविजंस हैं। फाइनेंशियल इमरजेंसी हो गया, नेशनल इमरजेंसी हो गया, प्रेसिडेंट रूल हो गया। ये भी एक जो है एक स्पेशल साइलेंट फीचर है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, बहुत सारे कंट्रीज में इस तरह का नहीं होता है। और जब इमरजेंसी प्रोविजन लागू हो जाता है तो जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है गवर्नमेंट का वो यूनिटरी में तब्दील हो जाता है। जैसे ही नेशनल इमरजेंसी लगती है तो सारा जो स्टेट के पास पावर होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ले लेती है, मतलब पार्लियामेंट के पास पावर आ जाता है। फिर जो स्टेट सब्जेक्ट्स जिन सब्जेक्ट्स पे लॉ बना सकता है वो लॉ भी नेशनल इमरजेंसी के तहत जो है पार्लियामेंट बनाएगी। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के 18th पार्ट में है एंड आर्टिकल 352 टू 360। ठीक है, फिर उसके बाद ऑलरेडी मैं बता चुका हूं फेडरल स्ट्रक्चर एक्वायर कर। So guys, now we'll see the important questions of this chapter. Now the first question will be the economic justice as one of the objectives of the Indian Constitution has been provided. Economic justice की कहां बात की गई है? प्रियम्बल में बात की गई है, फंडामेंटल राइट्स में इकोनॉमिक जस्टिस की बात की गई है, या प्रियम्बल एंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी में बात की गई है, या फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी में बात की गई है। ठीक है, तो दिस इज लिटिल टफ टू क्रैक, राइट, बट इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि प्रियम्बल में आपको याद होगा कि अपन ने बात करी थी, यहां क्या बात कर रहा है, इकोनॉमिक जस्टिस। जस्टिस किस चीज का प्रोवाइड किया था? सोशियो इकोनॉमी एंड पॉलिटी, सोशियो इकोनॉमी एंड पॉलिटी का जस्टिस। तो प्रियम्बल में जस्टिस तो था, इकोनॉमिक जस्टिस की बात हुई है प्रियम्बल में, तो प्रियम्बल जहां जहां नहीं है उसको काट लो। तो फंडामेंटल राइट डीपीएसपीएस में तो ये डी पहले तो कट जाएगा, फिर सी कट जाएगा क्योंकि इस पे प्रियम्बल नहीं है, तो ये दो तो कट गए। अब 50% चांस है कि आपका क्वेश्चन सही होगा। अब देखो प्रियम्बल इसमें भी है, प्रियम्बल इसमें भी है। अब फंडामेंटल राइट्स में इकोनॉमिक जस्टिस की बात नहीं है कहीं फंडामेंटल राइट्स में, लेकिन डीपीएसपी वेलफेयर स्टेट है तो उसमें कहीं ना कहीं इकोनॉमिक जस्टिस की तो बात की गई होगी, अगर आपको याद भी नहीं आ रहा आर्टिकल। तो द करेक्ट आंसर वुड बी, इफ यू गेस ऑल्सो देन द आंसर वुड बी बी। दिस इज हाउ यू सॉल्व योर एमसीक्यूज। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन विल बी which one of the following schedules of the constitution contains the provision regarding anti defection? ये फैक्चुअल क्वेश्चन था, आपको याद होना चाहिए। एंटी डिफेक्शन की बात कौन करता है? 10th शेड्यूल बात करता है। ठीक है, 52nd अमेंडमेंट 1985 ये था, आपको ये याद होना चाहिए। भैया सेकंड शेड्यूल किसकी बात करता है? पर्क्स एंड अलाउंसेस टू द मेंबर ऑफ सुप्रीम MPs, हाई कोर्ट जजेस, सुप्रीम कोर्ट जजेस। ठीक है, जो अदर इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंट्स एंड गवर्नर्स, उनके सैलरीज और पेंशन्स और उन सब की बात करता है। 5th शेड्यूल में क्या है? स्पेशल प्रोविजन रिलेटेड टू द ट्राइबल एरियाज। 8th शेड्यूल में क्या है? 8th शेड्यूल में इंडिया की 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है। तो अगर आपको इनमें से 2 या 3 भी याद होते, 2 भी याद होते तो आप एलिमिनेट कर सकते थे। गॉट माय पॉइंट? द करेक्ट आंसर विल बी द 10th शेड्यूल जिसमें एंटी डिफेक्शन की बात की है अंडर 52nd अमेंडमेंट 1985। ठीक है, क्वेश्चन थर्ड, टू अपहोल्ड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, द प्रोविजन में टू अपहोल्ड द प्रोटेक्ट एंड सोवरेनिटी यूनिटी ऑफ इंटीग्रिटी, ये किस में बात की गई है? फंडामेंटल राइट्स में की गई है क्या? इस तरह की कोई बात नहीं की गई। डीपीएसपी में बात की गई है? नहीं की गई। प्रियम्बल में इस तरह की कोई बात नहीं कही गई जहां पे स्पेसिफिकली वर्ड यूज हुआ हो, टू अपहोल्ड प्रोटेक्ट सोवरेनिटी यूनिटी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। सोवरेनिटी वर्ड यूज है, लेकिन क्वेश्चन क्या है कि ये बात की गई हो कहीं, तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज में द करेक्ट आंसर वुड बी द फंडामेंटल ड्यूटीज, राइट। फिर उसके बाद में हम देखते हैं द आइडिया ऑफ वेलफेयर स्टेट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंश्राइन्स। तो वेलफेयर स्टेट की बात कौन करता है? डीपीएसपी। आपने देखा होगा ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है कि भाई वेलफेयर स्टेट की बात कौन करता है, सो द करेक्ट आंसर वुड बी डीपीएसपी। तो इन चीजों में तो आपको कंफ्यूज होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, दिस इज वेरी इजी टू क्रैक। तो अब आप मुझे बताओ, जो मैंने अभी तक आपको क्लास में पढ़ाया है, जो अभी तक लेक्चर में पढ़ाया है, ऐसी कोई भी चीज है अभी तक जो मैंने छोड़ दी हो और उससे उस नॉलेज के बेसिस पे आप ये जो एमसीक्यू क्रैक नहीं कर सकते? तो वही मैं कह रहा हूं, वॉट एवर आई एम टीचिंग इन द क्लास, इफ यू डू दैट मच ऑल्सो, आई एम अश्योरिंग यू दैट you will able to qualify the polity at least 80% question.
you will able to manage 80% of the polity questions. क्योंकि 100% तो I cannot lie in front of you ना. Nobody can qualify 100 because in fact UPSC का जब कट ऑफ 90 जा रहा है 200 में से, जब यूपीएससी खुद डिमांड कर रहा है कि भाई लेस देन 50% आपको नॉलेज होगा तब हम आपको सेलेक्ट करेंगे, तो व्हाई टू रन आफ्टर द 100% एक्यूरेसी रिजल्ट, इजंट इट? तो फिर उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. Constitution of India defines the basic structure in the terms of federalism, secularism. देखो, Constitution of India कहीं डिफाइन नहीं करता है बेसिक स्ट्रक्चर को. मैंने आपको बताया बेसिक स्ट्रक्चर जो था वो वेरियस लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट्स थे उसके बेसिस पे आया था, राइट? तो ये ऑप्शन ए तो सीधा सीधा गलत हो गया. जहां जहां फर्स्ट है वो गलत कर दो उसको, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं डिफाइन ही नहीं है बेसिक स्ट्रक्चर. दूसरा क्या करता है? दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा कह रहा है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड ए जुडिशियल रिव्यू टू सेफगार्ड द सिटीजन लिबर्टीज एंड प्रिजर्व द आइडिया ऑफ विच कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड. कॉन्स्टिट्यूशन के किसी आर्टिकल में जुडिशियल रिव्यू लिखा हुआ है क्या? मुझे तो लगता लिखा हुआ है. तो द आंसर विल बी डी, नाइदर वन और टू. So guys, this is all about the silent features of the Indian Constitution. Till so far, अभी तक हमने क्या क्या किया है कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में? सबसे पहले हमने किया प्रीएम्बल, फिर उसके बाद में हमने मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और अब हमने किया साइलेंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या है? लेंथिएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, फिर उसके बाद इंडिपेंडेंट इंटीग्रेटेड जुडिशरी हो गई, फंडामेंटल राइट्स हो गए, फंडामेंटल ड्यूटीज हो गई, डीपीएसपी हो गया, ठीक है. फिर उसके बाद ये जितने भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ हमारी गवर्नमेंट हो गई, सिंगल सिटीजनशिप हो गई, ठीक है, 3 टियर ऑफ गवर्नमेंट हो गया, पंचायती राज सिस्टम वाला, स्पेशल प्रोविजंस फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड शेड्यूल्ड एरियाज. तो ये सारी चीजें मिलके क्या बनाती हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को? ये बताती हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ये चीजें साइलेंट फीचर्स हैं, ठीक है. दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास, ठीक है. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. टिल देन, थैंक यू सो मच.